دوستوں آج میں آپ کو بہت بہترین ویڈیو بتانے والا ہوں کہ ایک بندہ اگر ذکرنائی سے سوال کرتا ہے کہ اسلام میں کوئی بھی ذات پات نہیں ہے تو پھر یہ پٹھان یہ سید یہ کیوں ہے. تو یہ دوستوں پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. سب وکرم ہے اور میں جے این یو کا ہسٹری کا شودھ چھاتر ہوں اور پربھات خبر نیوز پیپرز کا دلی بیورو کرسپونڈنٹ ہوں. سر میرا سوال اسی سے سمبندھت ہے. دو سوال ہے. ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ جاتی واد کیول ہندو دھرم میں زیادہ مانا جاتا ہے، لیکن قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جاتی واد نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے اسلام میں تو سید ہے، پٹھان ہے، ان کو کافی اونچا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ جو نمن جاتی کے لوگ ہیں، جو دلت مسلمان ہیں، ان کے ساتھ بھید بھاؤ زیادہ تر کیا جاتا ہے. دوسرا کہ ٹرپل طلاق کے بارے میں بتائیے. میرا ایسا ماننا ہے کہ اسلام دھرم کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ہندو سنگھٹنوں نے ٹرپل طلاق کو بہو پرچارت کیا اور بدنام کر دیا. بھارت کے جن جن میں یہ ماننا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا جاتا، خاص کر ٹرپل طلاق کو لے کے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر اسپشٹ کریں. تھینک یو. میں سامنے دو سوال پوچھے. پہلا سوال کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں جات پات نہیں ہے تو اسلام میں سید ہے، پٹھان ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. او انسانوں، ہم نے آپ کو ایک جوڑی سے پیدا کیا، سنگل پیر، ایک جوڑی سے مرد اور عورت کی، اور آپ کو قبیلے میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. آپ کو قبائل میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑے یا اختلاف پیدا کریں. اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. قرآن شریف میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پرکھا جاتا ہے نہ کہ ان کی جائیداد پہ، نہ دولت پہ، نہ رنگ کے اوپر کہ کالا یا سفید، نہ امیر یا غریب، لیکن تقوی پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، کتنا خوف ہے. اور تقوی یہ چیز ہے جو انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے دوسرے انسان سے. تو جات پات اسلام میں بالکل نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع میں کہا کہ نہ کوئی عرب غیر عرب سے بہتر ہے، نہ کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے، نہ ہی کوئی سفید انسان کالے سے بہتر ہے، نہ کوئی کالا انسان سفید سے بہتر ہے. صرف تقوی سے انسان اوپر ہو سکتا ہے. تو جات پات اسلام میں نہیں ہے. یہ تو سرنیم ہے، خان، پٹھان، شیخ، سید، یہ سرنیم ہے. سرنیم مطلب جیسا ہوتا ہے نا سرنیم، مثال کے طور پر انڈیا میں کتنے لوگ کا سرنیم ہے، دیسائی سرنیم ہے، پٹیل ہے، جوشی ہے، جو بھی ہے، یہ سرنیم ہے. کدھر بھی قرآن یا حدیث میں نہیں لکھا گیا ہے کہ خان شیخ سے اوپر ہے. ہاں، شیخ جو عربک میں ہم سر کہتا کہتے ہیں، سر مطلب محترم. تو اس طریقے سے عربی میں شیخ ایک لقب ہے جسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے محترم، یا کوئی ضعیف انسان کو یا کوئی مالدہ انسان کو، وہ الگ لقب ہے. لیکن جہاں تک کہ سرنے میں اسلام میں کئی بھی جات پات اونچی نیچی بات ہے ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ مسلمان دیہات میں اس کو مانتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں تو اور اونچا ہوں، میں شیخ ہوں تو اونچا ہوں، سید ہوں تو اونچا ہوں. یہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے کچھ مسلمان، بہت کم ہیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بالکل اسلام نہیں کہتا ہے کہ انسان کو جات پات کے اونچ نیچ کے اندر بنایا گیا ہے. آپ کا دوسرا سوال تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے. مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک طلاق بدعت، طلاق ایک ساتھ میں کو ہو جاتی ہے. ایک طلاق حسن، جو طلاق دو، ایک ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو. اور تیسرا طلاق کے احسن، جو بالکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے. تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 مینسٹرل سائیکل
और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात ना बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिट्रर, हकम कहते हैं आर्बिट्रर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज़ के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपने बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियाँ बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह नया महर, नया निकाह नया महर, जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज है, तीसरे बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स मेरे जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के आसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, अलहदा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर अलहदा हो गए, फिर निकाह हुआ, फिर अलहदा। मैंने कोई भी शख्स मेरे जिंदगी में पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था।
हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हजरत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते क्या वो गलत है, लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल तो इब्न तैमिया, शेख इब्न तैमिया, वो कहते हैं कि ये हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है, इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्हें रुजू किया, इसीलिए वो कहते कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं होती। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना जरूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती ही नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है तलाक के हसन, उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियाद पे तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे मौके पे दी जा सकती है, देना चाहिए कि नहीं। तो ये सब अगर हम मुसलमान आम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इख्तिलाफ जो उम्मत में है वो नहीं रहेगा, और मीडिया उसे उछाल रही है। तो आपने ये वीडियो देखी, तो इसमें लड़की ने ना शुरू में 2 सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से किए। तो पहला तो उस ईसाई लड़की का बिलीव ये है कि जो है वो अल्लाह ताला जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है वही खुदा है, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उनको समझाया, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आई। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि वो अल्लाह ताला के क्या है, वो खुदा नहीं है, गॉड नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ताला क्या है, भेजे हुए नबी हैं, मैसेंजर हैं, जो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर इस दुनिया में आए और लोगों को हिदायत की। लेकिन क्योंकि अभी जो अक्सर जो ईसाई लोग हैं, ठीक है, क्रिश्चियन लोग, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो है वो खुदा थे, वो गॉड थे, क्योंकि उनका अकीदा ही गलत हो चुका है। लेकिन जो मुसलमान हैं उनका अकीदा यही है कि वो अल्लाह ताला के नबी हैं, नबी थे। और अगर कोई मुसलमान इस बात पे यकीन नहीं करता तो वो कामिल मुसलमान भी नहीं हो सकता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि अगर आपका बिलीव है तो बाइबल में किसी भी एक जगह से आप ये साबित कर दें कि कहीं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये अल्फाज लिखे हुए मिल जाएं कि वो जो है वो खुदा है, गॉड है। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर ये आप क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद जाकिर नाइक साहब ने ये भी कहा कि अगर आप जो है ये साबित कर दे तो मैं इस वक्त क्रिश्चियन हो जाऊंगा। तो फिर उस लड़की ने जो एक बुक का हवाला दिया जो कि बाइबल नहीं थी, तो उसका यहीं से ही सवाल जो था वो आंसर गलत हो गया। लेकिन फिर भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत अच्छे से जवाब दिया और समझाया, लेकिन क्योंकि उसके तो दिमाग पे ताला लग चुका है और वो समझने की हालत में नहीं है, वो तो समझना ही नहीं चाहती, बल्कि क्या करना चाहती है, वो इस्लाम पर और जाकिर नाइक साहब पर कीचड़ उछालना चाहती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़े तहम्मुल से उसे समझाया। तो बहरहाल उसे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ऑडियंस को जो है वो रीज़न और लॉजिक समझ आ गई। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि जो उस बुक के हवाले से ही उसमें भी यही नहीं लिखा हुआ, तो वो इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेशन है असल ग्रीक से। तो जब ट्रांसलेशन की गई तो उस ट्रांसलेशन में ही कुछ तब्दीलियां कर दी गई, तो वो असल जो है वो अपनी फॉर्म में ही नहीं है। तो जो आप असल मैनस्क्रिप्ट है, जो असल बुक लिखी हुई है बाइबल की, जिसको रेड स्क्रिप्ट कहते हैं, अगर आप उसमें से हवाला दें तो फिर बात है। तो जो बुक का आप हवाला दे रहे हैं उसमें भी ये नहीं लिखा हुआ, तो इससे वो साबित तो गलत हो गई, लेकिन उसने मानना नहीं था और माना ही नहीं है, ठीक है। और आगे से भी कोई मानेगा नहीं। अगर मान ले, इस बात को तस्लीम कर ले, तो फिर वो मुसलमान हो जाए, तो उनका अकीदा ही इस बात पे फिर गलत साबित हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को जो है वो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब